quite long, had handled huge number of batches. He is actually a multiple certified, consultant in terms of SAP modules. One of the expert, rich industry knowledge, rich experience, huge domain experience and knowledge. So one of the best person to guide you for the entire clarifications or whatever queries you may have for this session. Feel free to come up with all the clarifications, queries, questions that you need to clear yourself. In the meanwhile, Srinivas will start and continue the session with the basic and the the fundamentals that you should know about the module and its technicalities, its benefits, everything. So Srinivas, you take it up and let them understand how to go about, how are the technicalities, how are the career growth and everything. Please explain them properly. After that, if they have any questions, any clarifications to further go on with, they will feel free to go ahead with it. All right, Pragati, Snehal will begin. Yes, yes. All right, Got it. all right. Srinivas, please take it up. Thank you, Somi. Good evening, Miss Pragati and Snehal. Good evening. How are you Good guys? evening. I'm fine. And what about you, sir? I'm doing great. Thanks for your asking. Snehal, how are you doing? I am fine. Great. So it's good that you have chosen SAP as a career background. It's really a good decision. And moreover, you have chosen the material management module as your prime supporting career. So it is one of your best decision what you have taken. So let us make this session as an interactive session. Okay. So wherever if you're not able to understand anything, if I'm going very fast, please stop me then and there. And if you have any questions, please do this your voice. Okay. Okay. All right. Shall we start this session? Yeah, yeah. All right. So before Start. we start, right, before we start this session, so may I understand how you have come across about this SAP and why, what would be the reason that you have chosen the material management as the selective module? Anyone of you can tell me? Pragati? MM is the best model for mechanical engineering. Uh, that's why I choose Okay, it. Hello, hello, I great. can't hear you, sir. Snehal, am I Hello. audible? Yes, yes, yes. Right. Snehal, my question was, I mean, like, how did you choose the material management as the selective module from the SAP? Was there any particular decision on this? Uh, Material management, best model, Mm-hmm. and, and market, scope in market. Right. Okay. Okay. So I'll give you some picture so that you will understand how this material management, how it works. Okay. Now, when you join an organization, how it will happen and how it runs. Okay. Let us go with a simple example. Okay. Now, let us take, everyone knows we have a bankings, correct? Pragati, Snehal, you know about the banking, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, correct? Yes, sir. Right. So when Yes, you sir. go to a bank, right, when you go to a bank, okay, now if you Yes. want to open an account, what you earlier days, what we used to do, we used to fill the form and we used to give it to them. After 2 or 3 days, the account would have been opened. Now the technology has been completely changed. It's just a link. Okay, they will send you a link. You will fill the required details in the link, and your account will be opened immediately. Correct? Okay. Yes. Right. Now, what is that happening? How is it happening? Okay.
Now, once after updating the information, everything is getting captured in the application, right? Whatever the transactions you do, for an example, if you're withdrawing the amount, if you're depositing the amount, if you're making the online transactions, if you're making the, what do we call, point of sale transactions, everything is getting captured in the records. Now, how is this getting captured? There should be a software which has to be available to capture all this application, all these records, correct? Yes or no? Yes, yes. Okay. If you go back to the a few days back, everyone they used to maintain the account records in a piece of paper or in a book, correct? Yes. Now the system has changed. Okay, the software has been upgraded. The technology has been gone into the higher level. Okay, now everything has to be systemized. Okay, that is the reason this software application has came into the market. Okay, now when we are talking about the SAP, okay, what exactly the SAP? Now I'll give you a simple example. Okay, now you would have heard about this software engineers, correct? Have you heard about the software engineers, where you are working? Okay, I'm working in an IT industry, I'm a software engineer. Have you heard about this or not? Pragati, Snehal. Actually, I don't understand your question. No, have you heard? कभी ने आपको बताया कि मैं आप क्या करते हो? मैंने हाँ मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. I'm Okay, one working in thing a proper. here, Srinivas, sorry to Yes. cut you. Okay, Pragati and Snehal should also come with their profile explanation once, no? So that accordingly you can address them. Okay, sure. Great. Pragati, I don't know whether you are comfortable in Hindi or English. Please explain your profile. मतलब आपका क्या background है थोड़ा explain करिए. Snehal at the same time you also be prepared. आपको भी explain करना पड़ेगा. Accordingly the trainer will guide you how to go about. Okay? तो ये आप थोड़ा पहले बताइए आप अभी currently क्या कर रहे हैं आपका क्या qualification है and everything. I think BE mechanical both of you are. Yes, yes. Be Okay, so mechanic. after that, what are you doing? Please let us know, both of you. Hello. हाँ बोलो स्नेहल आवाज थोड़ी नीचे आ रही है थोड़ा माइक्रोफोन चेक करके बोलो Hello. या स्नेहल गो अहेड बोलिए कोई एक तो बोलिए प्रगति की आवाज काफी नीचे आ रही है Yeah, you are audible. My qualification background are mechanical engineering, and after complete my degree, I have completed a small internship like sales analysis, 2 months of internship. okay okay any other experience Um, no. okay Snehal please tell me My name is Snehal Dambre. I am pursuing engineering, ma'am. Hello. Hello. You are audible, Snehal. Go ahead. I am pursuing engineering, sir. Okay. You are Uh, still pursuing your engineering now. yes. So do you have any work exposure or a work experience? Yes, sir. I have 2 years experience in Verock company. Okay, you were working as a Yes. no. I mean, like, what was your role? Quality What? assurance. Okay, you were belongs to a quality department where you used to take care of the quality part. Yes. Great. Anything else would you like to add, Pragati or Snehal? Yes, yes, sir. No, you guys are comfortable in English, right? Yes, sir. So you are No able to understand. language.
both. Sorry, Pragati. Most comfortable in Hindi. So Pragati, you are comfortable in Hindi. Actually, my communication skill is not good in English. That's why. Okay, great, no problem. So you want us to make you understand in Hindi. What? नहीं, आप चाहते हो हम हिंदी में बताएंगे आपको? या कुछ हाँ। पॉइंट्स इंग्लिश में बताएंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन Okay. ज्यादा में हिंदी में पढ़ाना. ओके स्नेहल, आपकी तरफ हाँ से ठीक क्या है बोलना सर, चाहते चलेगा हो? चलेगा, हिंदी में चलेगा सर मुझे। और हिंदी में भी चलेगा और इंग्लिश में भी चलेगा और आपको? दोनों में भी चलेगा, हाँ ठीक है। दोनों भी चलेगा। Tommy, would you like to add anything? You can go on, but at the same time, Pragati and Snehal, if you are looking for a career in SAP, ये आपको बता के रखूँ, English communication is a must. क्यों मैं ये आपको बता देती हूँ hand on hand. That is, all the clients are from abroad. When there is an American client, when there is a UK client, आप उनको बताएंगे क्या हिंदी में बोलिए? नहीं बोलेंगे ना. तो these are all co-related. मैं अभी आपको बोल रही हूँ आप इंग्लिश सीख लीजिए, इसका मतलब नहीं कि आप एक हफ्ते में इंग्लिश सीख लो और you are master in English. It's not like that. ये प्रोसेस आप चालू रखिए, मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन को आप स्ट्रॉन्ग करिए जब तक ना आप निकल जाते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि प्लेसमेंट में आपका बिल्कुल अटक जाएगा इन दैट केस अगर आपकी इंग्लिश प्रॉपर नहीं है तो, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको इंग्लिश के सिवाय और कोई भाषा में नहीं पूछेगी. दैट इज वन. एंड सेकेंडली, अगर कहीं किसी भी तरह आपको जॉब मिल भी गई, क्लाइंट सारे अब्रॉड के क्लाइंट्स होंगे जहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करना पड़ेगा. यू गॉट माई पॉइंट. सो दिस इज अ मस्ट. आपको अगर एसएपी करना है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक द फाइनल कॉल. आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल आवर वर्ड्स, राइट? आपको सब बात समझ में आ रही है, राइट? बट आप उतना कंफर्टेबल नहीं हो जितना कंफर्टेबल कि आप हिंदी में हो. तो वो जगह आपको पहुंचनी पड़ेगी, इंग्लिश की वो लेवल आपको पहुंचनी पड़ेगी जहाँ पे इंग्लिश इज इक्वली अ कंफर्टेबल लैंग्वेज फॉर यू. आपको बोलना समझना दोनों साथ में आए, वरना आप क्लाइंट को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, आपको आगे चल के जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी. तो ये वाली जगह आप थोड़ा मेंटेन कर लीजिए, थोड़ा इसे आप संभालिए, इसको थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करिए, ताकि इतने इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आपको जॉब ना मिले, वो क्या ठीक रहेगा? यू टेल मी. नहीं. So that's what you have. मतलब जब इंग्लिश में पढ़ाते हैं ना तो समझ में आता है, लेकिन बोलने में तकलीफ होती है. बोलने में तकलीफ होती है. That's what I'm saying. No, you are understanding what I am saying. I can make out you are understanding what I am saying, but at the same time, you have to be confident when you are talking. क्योंकि आप जब क्लाइंट को रिप्लाई करेंगे, आप हिंदी में नहीं रिप्लाई कर सकते, या कि इंटरव्यूअर को जब आप रिप्लाई करोगे आप हिंदी में थोड़ी ना रिप्लाई करोगे, आपको तो इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा. तो वो वाली लेवल, वो कंफर्ट जोन आप तैयार करो अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ. ओके, ऑलराइट. श्रीनिवास विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी ओनली. आप समझ लो, देन अकॉर्डिंगली यू गो अहेड. ओके. बट अगर आप एसएपी करते हैं पैरेलली, आप अपनी इंग्लिश को प्लीज एनहांस करिए, वरना आगे चल के मुश्किल हो जाएगा. श्रीनिवास प्लीज करिए. Thank you. So Pragati, Snehal, as you thanks that you have opened up. आपने जो बताया था आपको समझने में थोड़ा तकलीफ रहेगा, बात बताने में थोड़ा तकलीफ रहेगा. Thanks that you have initiated. But मैं ये कहना चाहता हूँ कि you start developing your English skills, ठीक है, from the day one. We are here to help you. अगर कोई भी प्रोसेस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हम बता दीजिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. इसमें कोई तकलीफ नहीं है हमारे को बार बार एक्सप्लेन करने में. ओके, अगर हमारा एम है कि आप समझना है. ओके, यू हैव टू बी 100% श्योर वॉट एवर आई एम टीचिंग यू. ओके, यू हैव टू बी 100% श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आया, ठीक है. नाउ दिस एसएपी करियर. ओके, सो हम यहाँ पे अगर कोई भी आपके कोलिग्स रहने दो, हाँ, या हमारा क्लाइंट्स रहने दो,
जो भी है, हम द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन इज ओनली इंग्लिश। ठीक है, डे 1 से आप शुरू करिए और ट्राई कीजिए। ओके, प्रैक्टिस करने में आपको ऐसा मिलेगा। हाउ यू विल लर्न व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, by reading a books or by going to the videos or going through subtitles. This is not the way you learn English. Okay, when you start interacting with the others, ठीक है, एक दूसरे से बात कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा और आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, Okay, sir. cool. Okay, now let us go back to the SAP part. Okay, now you know how you will be selected, what is your role in the SAP. Okay, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, नाउ देयर इज अ कंपनी। ओके, नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। लेट मी नो वंस द स्क्रीन इज विजिबल। आपको एक्सेल दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जी, ग्रेट। तो व्हाट इज योर रोल? ओके, आपका रोल क्या रहेगा व्हेन यू गॉट सेलेक्टेड इनटू अ जॉब? व्हाट इज योर रोल एंड व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू डू? Okay, now there is a company called Tata. You all heard about the Tata, correct? Tata Motors. No. आपको पता है टाटा? Yes. Tata cars, right? So there is a company called Tata Motors. Now what they want to do, no? They didn't had any application. They were running an older application. Okay. Now what they are trying to do, they want to get into a new technology. Okay. So when they want to try to get into a new technology, वो लोग मार्केट पे आए थे। मार्केट पे आने के बाद दे हैव स्टार्टेड चेकिंग व्हाट इज द बेस्ट एप्लीकेशन, मतलब कौन सा अच्छा सॉफ्टवेयर रहेगा मार्केट में ताकि हम यूज कर सकते हो। अपना जो काम है वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा विदाउट एनी manual interface. Okay, so when they get into the market, they have started looking into the market. जैसे अपने SAP है, okay, we have the other competitors also. For an example, we have जैसे कि SAP, we also have a Oracle. आपने सुना ये नाम Oracle? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Oracle, okay, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Yes. Microsoft Dynamics, ठीक है, ये है, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, ये जैसे एसएपी है, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, ये भी एक ईआरपी एप्लीकेशन है। ठीक है, नाउ द टाटा मोटर्स वे वो मार्केट पे आया था, वो लोग स्टार्टेड चेकिंग। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल व्हेन यू वांट टू बाय समथिंग, आप क्या करते हो? अमेज़न पे जाके आप रिव्यूज पढ़ते हो, कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, 4 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है, एक दूसरे से पूछते हो आप कहीं से खरीदा क्या, आपको कैसा रहेगा ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद, ये यू विल स्टार्ट सर्चिंग ऑल दिस थिंग्स, राइट? यस और नो? Yes. Yes, sir. राइट, इन द सेम वे द टाटा मोटर्स आल्सो व्हाट दे विल डू, वो लोग मार्केट पे आने के बाद दे विल स्टार्ट रिसर्चिंग इट। वो लोग रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद वो लोगों को ये पता चला कि SAP is the best option because SAP is the one who is leading in a top one position from a longer duration. ठीक है, now what they have done, वो लोग है ना सीधा SAP पे क्या पास जाके वो लोग बातचीत करते हैं, मतलब okay, I want to buy your SAP services, what is that you are offering? So you go to a shop, just like if you want to buy an AC today, this is the summer, right? Now you're going to an electronics shop. Now you go to an electronic shop and you are asking them, okay, I want to buy an AC. What is that you're offering? What is the price and what are the features that you have? AC में क्या क्या फीचर्स है आप पूछ रहे हो, तो आपने शॉप वाले आपको बताते हैं या नहीं? वो लोग सब बताएंगे ना आपको, प्राइस बताएंगे, उसके जो भी फीचर्स है वो सब बताएंगे आपको, करेक्ट? इन द सेम वे टाटा मोटर्स जब एसए के पास जाएंगी, एसएपी वाले भी वही बताएंगे आपको। एसएपी इज टेल यू दैट अगर आप एसएपी सर्विसेज ले रहे हो, इट विल कॉस्ट दिस मच ऑफ प्राइस। ठीक है, ठीक है, बातचीत हो गया था। नाउ द टाटा मोटर्स हैव व्हाट दे हैव डन, दे हैव बाय दी सर्विसेज, उसने एसएपी का राइट्स खरीद लिया था।
ठीक है। नाउ टाटा मोटर्स के पास एसएपी राइट्स लिए है, जैसे आप एसी खरीद लिए। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, आपका रियल टाइम एग्जाम्पल, आप एसी खरीदिए, आप एसी है ना आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, वो फिक्स करना पड़ेगा ना, यस और नो। Yes. तो Yes, sir. फिक्स करने के लिए, हाँ, Yes. फिक्स करने के लिए जो एसी से जो कंपनी वाले रहेंगे, वो लोग आएंगे, वो लोग फिक्स करके चले जाएंगे। दूसरा है, अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं, हम अपने तरफ से किसी और का अपॉइंटमेंट करके फिक्स करवाना पड़ेगा, सही और नहीं, है ना, Yes, sir. राइट। इन द सेम वे टाटा मोटर्स जब एसएपी राइट्स खरीदती है, इसको एसएपी को टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए भी लोग चाहिए, बिकॉज दिस इज द ह्यूज सॉफ्टवेयर, ठीक है। सारा डिपार्टमेंट्स टाटा मोटर्स में हर एक डिपार्टमेंट्स रहेगा, अगर कंपनी में अगर देख लिया तो फिनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट रहेंगे, एडमिन डिपार्टमेंट रहेंगे, ओके, जैसे आपने बोला था मटेरियल, ठीक है, मटेरियल्स डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ओके, ये सब सारा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहेंगे, है ना। टाटा मोटर्स का मतलब एक बड़ा कंपनी है, बड़ा कंपनी बोले तो सारा सारा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहेंगे, हर एक डिपार्टमेंट में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए अगर टाटा मोटर्स अगर जाना है तो एसएपी पास जाके सीधा बोल सकते हो, आपके तरफ से कोई लोग है क्या हमारे को ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, वो लोग पूछते हैं, तो एसएपी बोलता है हमारे पास, अगर आपको हो गया है तो हम आपको इंस्टॉल करके दे देंगे। तो दे विल टेल, बट दे विल चार्ज प्राइस, ठीक है, प्राइस रहेगा, महंगा पड़ेगा। एसएपी के पास अगर कोई आके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है तो उसके लिए प्राइस महंगा पड़ेगा। नाउ व्हाट दे विल डू टाटा मोटर्स, इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ एसएपी, ठीक है, मार्केट में कोई और है क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, ओके। नाउ दे विल कम इनटू द मार्केट एंड दे विल स्टार्ट लुकिंग एट द कंपनीज हु आर रेडी टू सर्व, मतलब ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट इंस्टॉल करने के लिए कोई है क्या। तो देन these companies comes into the picture, आप ये नाम तो सुना ही होगा, टीसीएस, Yes, इन्फोसिस, sir. Yes, sir. विप्रो, डेलॉयट, ये नाम तो सुना ही होगा आपने, कॉग्निजेंट, Yes. हाँ, ऐसा थोड़ा बहुत कंपनीज है, ठीक है। दे विल व्हाट दे विल डू, they will install these SAP software applications, ठीक है। Now Tata Motors what they will do, they will have a interaction with these companies, टाटा मोटर्स है ना, एक दूसरे से बात करके, मतलब टीसीएस बोलता है हम 20, मतलब मान लो 10 करोड़ में हम इंस्टॉल करके दे देंगे, इन्फोसिस बोलता है नहीं हम 8 करोड़ में करके दे देंगे, विप्रो बोलता है हम 6 करोड़ में करके दे देंगे, डेलॉयट बोलता है हम 12 करोड़ लेते हैं, कॉग्निजेंट बोलता है नहीं हम सिर्फ व्हाट डू वी कॉल 5 करोड़ में कर देता है। तो टाटा मोटर्स ने किसको चूज करता है, Cognizant. क्यों, कम प्राइस कम है बोल के, Yes. ऐसा, सी, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम प्राइस कम है बोल के दे विल चूज 5 crores, सी फॉर टाटा मोटर्स 5 crores is a very less amount, yes or no, Yes. टाटा मोटर्स is a big huge organization, 5 crores is very less for them, बट ये देखते हैं हम उसका ब्रांड वैल्यू क्या है, ओके, ये लोग कितने प्रोजेक्ट्स करें, वो सक्सेसफुल रेट क्या है, ओके, ये सब देखते हैं, ठीक है, ये सब देखने के बाद दे विल गिव अ प्रोजेक्ट टू द रेस्पेक्टिव कंपनी, ठीक है। मान लो टाटा मोटर्स ने दे हैव चूजन विच कंपनी, डेलॉयट को ही लिए थे, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द प्राइस, नाउ प्राइस का बात छोड़ दो, now Tata Motors have chosen the Deloitte company, now Deloitte company is ready to install the SAP, किसको इंस्टॉल करते हैं डेलॉयट अभी, Deloitte SAP को इंस्टॉल करते हैं। डेलॉयट एसएपी कौन से कंपनी को इंस्टॉल करना है, Tata Motors, na? करेक्ट, टाटा मोटर्स को इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल करने के लिए लोग चाहिए ना, यस और नो, Yes.
Yes. Yes, yes. राइट। तो एसएपी में एक एक मॉड्यूल्स रहेगा। तो फर्स्ट रहेगा फिनांस, FICO, फिनांस एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। और उसके बाद में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में मटेरियल मैनेजमेंट, उसके बाद में प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, HR मॉड्यूल, ठीक है। Yes. ऐसे EWM मतलब वेयर हाउस मैनेजमेंट भी रहेगा, ठीक है। WM वेयर हाउस मैनेजमेंट रहेगा। ऐसे दूसरे एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट मेजर मॉड्यूल्स रहेगा। ये सब मॉड्यूल्स कहाँ पे इंस्टॉल करना है? टाटा मोटर्स में इंस्टॉल करना है, ठीक है। नाउ यहीं पे क्या होगा, सभी एक आदमी करेगा ये सब नहीं है ना। इसके लिए नहीं। हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक रहेगा, नहीं तो दो दो रहेगा। प्रोजेक्ट के हिसाब से एक एक बंदा जरूरत पड़ा था। तो मान लो FM यहाँ पे एक बंदा लिए थे, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा। ऐसे कितने लोग बन गए अभी? 8 लोग बन गए, ठीक है। दे आर 8 मेंबर्स, ठीक है। 8 मेंबर्स टोटल 8 है। इसको बोलते हैं हम फंक्शनल कंसल्टेंट्स। क्या बोलते हैं? फंक्शनल कंसल्टेंट। इसको बोलते हैं हम फंक्शनल कंसल्टेंट्स। तो इसमें जो भी का बंदा है, ठीक है, का जो बन गया, एक स्नेहल भी बन सकते हैं, एक प्रगति भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यू आर अ फंक्शनल कंसल्टेंट, ठीक है। आपका काम है सिर्फ ये मॉड्यूल मतलब मटेरियल मैनेजमेंट का जो भी काम रहेगा वो सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, ओके। यू Yes. विल बी वर्किंग फॉर अ डेलॉयट, यू आर हायर्ड फॉर अ डेलॉयट, ठीक है। आप काम कहाँ पे करते हो? डेलॉयट में काम करते हो। किसके लिए काम कर रहे हो अभी? टाटा मोटर्स के लिए टाटा काम कर रहे मोटर्स। हो। यस। समझ में आया आपका रोल क्या है अभी? यस। Yes, sir. Right. You are a functional consultant and you will be working for a Deloitte company. You are working in a Deloitte company, but however, you are working for a Tata Motors. हम बोलते हैं इसका प्रोजेक्ट बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते। दिस इज अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है। ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। यस। जो भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है ना, इसको हम SAP के भाषा में बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। हमारा क्लाइंट क्या वो क्लाइंट कौन होगा? हु इज आवर क्लाइंट? अपना क्लाइंट Tata कौन है अभी? Motors. Tata वेरी Motors. गुड, वेरी गुड। टाटा मोटर्स इज आवर क्लाइंट। एंड विच कंपनी यू आर वर्किंग फॉर? Deloitte. Very good. Deloitte is your company. Okay. What is your role? Uh, फंक्शनल कंसल्टेंट। Functional. Correct. मटेरियल मैनेजमेंट। Functional consultant. ठीक है। So this is your role. Okay. And ये प्रोजेक्ट रहेगा मोस्टली 8 महीने से लेके 12 महीने तक एक प्रोजेक्ट चलता है। फॉर दिस 8 to 12 months, 8 महीने भी हो सकता है, 9 महीने या 10, 11, 12, कौन सा भी 1 ईयर भी एक प्रोजेक्ट बन सकता है। डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट। जितना मॉड्यूल्स बढ़ते जाते हैं उतना ड्यूरेशन बढ़ते जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट डिजाइन होता है। सो यू विल बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑन एन एवरेज फ्रॉम 8 to 12 months ऑफ दिस वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ओके। नॉट ओनली द फंक्शनल कंसल्टेंट्स, यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना, फंक्शनल कंसल्टेंसी नहीं है, और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसको बोलते हैं हम टेक्निकल कंसल्टेंट भी रहता है, ठीक है। टेक्निकल कंसल्टेंट, ओके। बोलते हैं हम अबैपर्स। कहीं सुना है आपने अबैपर्स? Yes, sir. यस सर। हाँ, अबैपर्स जो होता है ना, वो लोग कोडिंग। और ये बात भी मैं बोलता हूँ आपको, हम जो ये फंक्शनल कंसल्टेंट्स होता है ना, ये आपने जो सुना ही होगा, ये जो कोडिंग होता है ना, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, इसमें नहीं रहेंगे।
वो काम करता है, टेक्निकल कंसल्टेंट्स का जॉब है वो लोग, वो एबापर्स का काम है कोडिंग करना है या प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। और Yes. दूसरा एक टीम भी रहेगा, बेसिस टीम, सिक्योरिटी एंड बेसिस टीम। लोग का काम होता है एक्सेस का काम देखना है, जिसको एक्सेस करना है एसएपी एप्लीकेशन, उसको यूजर आईडी बनाना है, अगर लॉक है तो अनलॉक करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, रीसेट करना है, किसी और को एक्सेस दिलाना है, तो ये सब देखता है बेसिस टीम, ठीक है। Yes. समझ में आया आपको यहाँ तक? एनी Yes, sir. क्वेश्चंस? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन सो फार? आपको कोई सवाल क्वेश्चंस है आप अभी तक? नहीं सर। सब क्लियर है आपको? Yes, sir. तो ऐसा होता है काम, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, ओके, यू विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट द एसएपी, ओके। नाउ व्हेन यू गेट इनटू द ट्रेनिंग, ओके, जब आप पढ़ाई खत्म करके जब ये मार्केट में आते हो, ठीक है, सो कंपैरेटिव टू अदर जॉब्स, ठीक है, अगर आप दे मान लीजिए अगर आपको पढ़ाई खत्म करते ही कहीं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब मिल जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मिलेगा आपको मिलेगा सर। इमीडिएटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर? नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा सर्च हाँ, करने के सही लिए। है, करेक्ट। मगर आपको जब एसएपी मार्केट में जो होता है ना, मान लो अगर आप पढ़ाई खत्म हो गए, ठीक है, आप एसएपी सीख लिए हो, ठीक है, फ्रेशर्स को भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहता है। जैसे आपने मॉड्यूल ये चूज किया था मटेरियल मैनेजमेंट, अगर आपका जॉब पोर्टल कहीं आप नौकरी पे जाओ, ठीक है, एसएपी एमएम जॉब्स खोल के आप ट्राई कर लीजिए, आपको इतना अपॉर्चुनिटीज रहेगा मटेरियल मैनेजमेंट में, उतना अपॉर्चुनिटीज रहता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव टू अदर मॉड्यूल्स, अब आप उसे से भी कॉम्पिटिटिवली एमएम को भी ज्यादा फोकस रहेगा आपको, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। करियर के पर्सपेक्टिव आपको कुछ है, क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, मैं बोलता हूँ आपको, आई वुड हेल्प यू। सर मुझे पूछना था एक क्वेश्चन। हम्म एंड यूजर पे वर्किंग करते हैं ना। हम्म, हेलो। हाँ हाँ, उसमें हेलो। या गो हेड गो हेड। कंसल्टेंट और एंड यूजर में क्या डिफरेंस होता है सर? वेरी गुड, ओके। जो आपने ये फंक्शनल कंसल्टेंट्स होते हैं ना, हम्म, ठीक है, जो भी हम है सिस्टम रेडी करके हम दे देते हैं। आप मान लीजिए आपको ये डीमार्ट पता है? डीमार्ट, यस यस सर। डीमार्ट पता है ना, शॉपिंग मॉल्स, ओके, शॉपिंग सुपरमार्केट, ठीक है। जब मेरे पास एक ट्रॉली है, उसके अंदर पूरा मैंने ग्रोसरीज बना के मैंने बिलिंग काउंटर के पास गया था। वो लोग क्या करते हैं, अपना एक एक आइटम करके उसको स्कैन करते हैं, है ना। हम्म। स्कैन करके उसमें हम क्या पूछते हैं, वो लोग इतना हुआ है बिल, पैसे भर दीजिए, है ना, ठीक है। जब स्कैन करते हो, अगर आप सिस्टम में देख लिया तो बिल वहां पे जो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट का नाम आएगा और उसके साथ प्राइस भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। हाँ। तो जितना भी मेरे पास, मैंने एक 25 आइटम्स मैंने खरीदा था, ठीक है, 25 आइटम्स का लिस्ट बन गया, उसका प्राइस बन गया, जीएसटी डिस्काउंट जो भी है सब मिला के फाइनल प्राइस आ गया वहां पे, है ना। हाँ यस सर। अभी जो काउंटर पे जो स्कैन कर रहा था बंदा, उसने कुछ टाइप किया था क्या, एक एक करके? नहीं, उसने सॉफ्टवेयर में सब कुछ सॉफ्टवेयर में स्कैन है ना, करके ऑटोमेटिक आएगा ना सर वो। करेक्ट। उसका काम जो है सिर्फ स्कैन करना, सही है ना, हम्म। ठीक है। मैं अभी बोलता हूँ, जो बंदा स्कैन कर रहा है ना, वो एंड यूजर है, ओके। ठीक है। हाँ। जब स्कैन करने में आपको सब प्रोडक्ट आइटम, सब बिल, सब कुछ अंदर सॉफ्टवेयर में जब पूरा तैयार होके स्क्रीन पे दिख रहा है ना,
वो जो बनाता है ना वो फंक्शनल कंसल्टेंट है। अच्छा। ठीक है, हम सिस्टम रेडी करके क्लाइंट को दे देंगे, मतलब टाटा मोटर्स को हम उसको दे देंगे, यही है आपका सिस्टम, आप ऐसे यूज करना है। ठीक है, आप यहीं पे जाके ऐसा ऐसा करके आपको यूज करना है, हम ऐसे सिस्टम रेडी करके उसको हम बताएंगे ऐसा यूज करना है। उसका जो जॉब है वो सिस्टम यूज करना बस। जो डेली बेसिस को हम प्रोजेक्ट के हम क्या बोले थे, 8 महीने से लेके 12 महीने तक प्रोजेक्ट रहेंगे, है ना, हम उसको सिस्टम रेडी करके दे देंगे। अभी वो लोग उसका डेली जो जॉब होता है ना वो सिस्टम को यूज करना पड़ेगा, है ना, तो सिस्टम यूज करना पड़ेगा मतलब डेली वो एप्लीकेशन यूज करेगा। जो बंदा डेली एप्लीकेशन यूज करता है वो एंड यूजर है। यूज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम रेडी करके देता है वो फंक्शनल कंसल्टेंट है। समझ में है आपको Yes, एंड sir. यूजर एंड कंसल्टेंट का दोनों के Yes, बीच? sir. Yes, sir. और कोई सवाल है आपके पास? पूछ लीजिए आप, अगर आपके पास कोई सवाल है तो। सर जो फंक्शनल कंसल्टेंट है ना, उसमें क्लाउड या डेटाबेस यूज करते हैं क्या? जो हम सीख रहे हैं ना, क्लाउड हाँ। वो अलग है। ओके। ठीक है, फिलहाल के लिए क्लाउड का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अलग ही है। और डेटाबेस? तो सब हम डेटाबेस में ही सीखते हैं। फिलहाल जो चल रहा है क्लाउड डेटाबेस ही चल रहा है। और सर वो एंड यूजर और कंसल्टेंट है ना, हम्म, एंड यूजर में एक पर्टिकुलर टी कोड यूज करते हैं क्या, मतलब जो लगते हैं वही कम से कम पर्टिकुलर टी कोड, टी कोड्स? ट्रांजैक्शन कोड्स। हाँ, यस। पर्टिकुलर टी कोड क्या होता है, आप पूरी कर सकते हो? कैन यू कंप्लीट योर क्वेश्चन? मतलब जो टी कोड्स रहते हैं ना, हाँ, टी कोड्स मल्टीपल। रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो एंड यूजर में थोड़े बहुत ही यूज करते हैं ना, मतलब कंपनी में। सही है। तो हाँ। कंपनी हो रहता है, बड़ी कंपनी है, ठीक है, मान लो हमारे पास इतने मॉड्यूल्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट में एक दो तीन लोग रहेंगे, है ना। हाँ। वो लोग रहता है डेली एप्लीकेशंस कितने यूज करते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 यूज करते हैं शायद। एक एक डिपार्टमेंट में रहता है एक एक एप्लीकेशन, वही एसएपी सॉफ्टवेयर है, मगर उसको ऐसा एक्सेस दिया जाएगा ताकि तुम्हारा जो एक्सेस करना है सिर्फ 5 एप्लीकेशन है, सिर्फ वो 5 ही टी कोड्स आप यूज कर सकते हो। एंड मोर ओवर, अब जो बना रहे, अब जो हम सीखने वाले हैं उसको बोलते हैं S/4HANA। आप तो सुना ही होगा Yes, S/4 sir. HANA। Yes, sir. जब आप S/4HANA सीखते हो उसमें रहेगा फ्यूरी एप्लीकेशन। Sure. जब आप फ्यूरी सीखते हो ना, टी कोड्स का जरूरत कुछ नहीं है। ओके। फ्यूचर जो बनता है ना, जो भी एंड यूजर है ना, टी कोड्स याद रखने का जरूरत नहीं है। ओके। एसएपी ने ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया कि ताकि तुम जाओ, जो भी वहां पे सामने जो बटन दिखता है उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। टी कोड याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पे दिखता है, आपको कौन सा काम चाहिए वहां पे दिखता है, वहां पे जाके क्लिक करना है, बस हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम फियोरी टाइल्स। टाइल्स। अब अगर आप जैसे आपको मोबाइल में ऐप्स रहेगा ना, मोबाइल ऐप्स, मोबाइल हाँ। ओपन करते हैं ऐप्स, जो भी आपको जाना है तो ऐप पे आप जैसे क्लिक करते हो ना आइकॉन्स पे, तो फियरी एप्लीकेशन में वही रहेगा। ठीक है, वो क्लिक करके तो काम बन जाएगा। तो फ्यूचर वही है, फिलहाल के लिए वही चल रहा है, हम अपने ट्रेनिंग पे वही सीखने वाले हैं। हम टी कोड से याद रखने का जरूरत नहीं है। एंड यूजर भी हम जो एस फोर आना सॉफ्टवेयर जो लेता है अभी, वो टी कोड्स रखने की जरूरत नहीं है। जो वो सब लोग है ना फ्यूरी टाइल पे काम करते हैं, सिर्फ वहां पे जाना है, बटन पे क्लिक करना है और काम बनना है, बस। टी कोड्स का जरूरत नहीं। मगर आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि सब लोग सब टी कोड्स याद रखने की जरूरत नहीं है। हर डिपार्टमेंट का एक एक काम होता है, उसके लिए जो टी कोड्स जानना है वो सिर्फ जानेगा और ही टी कोड्स पे वो काम करेगा। एनी क्वेश्चंस?
सर आईटी कंपनी में सिर्फ फंक्शनल कंसल्टेंट पे क्या काम होता है कि एंड यूजर पे वर्क होता है सर? ठीक है, हम आप एंड यूजर पे इतना स्ट्रेस मत करो, यू आर नॉट एन एंड यूजर। आईटी कंपनीज में एंड यूजर नहीं रहेंगे, ठीक है। हाँ, यस ये सर। जो कंपनीज रहता है उसमें सिर्फ फंक्शनल कंसल्टेंट्स होता है। एंड यूजर्स होता है जैसे आप ये टाटा मोटर्स, रिलायंस, ओके, जिसमें ये फैक्ट्रीज में और कंपनीज में जो काम करता है ना उसको एंड यूजर्स बोलते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग हाँ, कंपनी में होता है वो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज में जो काम करता है वो लोग एंड यूजर्स है, ओके। ठीक है। हम है फंक्शनल कंसल्टेंट्स। तो अगर आपको एंड यूजर और फंक्शनल कंसल्टेंट जिसका पोजीशन हाई अगर पूछ लिया तो फंक्शनल कंसल्टेंट है उसका पोजीशन हायर पोजीशन है। एंड यूजर का काम है वो वेरी लोअर पोजीशन। वो लोग है ना टाटा मोटर्स के तरफ से एंड यूजर्स बोलते हैं। इसको हम्म। बोलते हैं एंड यूजर्स। जो भी एम्प्लॉयज ऑफ टाटा मोटर्स आर एंड यूजर्स, ओके। ठीक है। डेवलप में जो काम करता है वो लोग फंक्शन कंसल्टेंट्स है। हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं, हम उसको सिखाते हैं कैसे यूज करनी है ताकि वो सीख लेता है, तो उससे वो काम चलाता है। अपना हैंड ज्यादा रहेगा, उसका हैंड कम रहेगा, ठीक है। यस आप सर। एंड यूजर्स नहीं होते हो, आप फंक्शनल कंसल्टेंट्स हो, यू आर नॉट एन एंड यूजर्स। तो डू नॉट वरी अबाउट द एंड यूजर्स। एंड यूजर्स का जहाँ उसका काम है, हम जो बता रहे हैं उसको सीखना है, वो सीख के हाँ उसको काम चला सिखाते काम चल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इस ट्रेनिंग पे अगर आप देख लीजिए हो तो यू व्हेन यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग, ओके, यू विल गेट ऑल योर ट्रेनिंग वीडियोस। जो भी क्लास में जो होता है ना सब वीडियोस बन जाएगा। एंड यू विल गेट द ई बुक्स। आप सुना है ई बुक्स? यस सर, सुना है। ई बुक्स रहेगा। अगर ये 8 महीने से लेके 12 महीने तक क्या करते हो, हर स्टेज पे क्या क्या करना है, ठीक है, वो सब आपको डॉक्यूमेंट्स में हम प्रोवाइड करेंगे। उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ओके। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना रियल टाइम, वो डॉक्यूमेंट्स हम सब आपको बताएंगे, देंगे, ठीक है। और रियल टाइम प्रोजेक्ट जो लाइफ का जो काम चलता है ना, रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपोजर, है, वो भी आपको मिल जाएगा। और सर्टिफिकेशन के लिए भी हम आपको ट्रेन करेंगे। सर्टिफिकेशन जो भी ट्रेनिंग होता है ना वो सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग भी होता है, ओके, उसके हिसाब से ट्रेनिंग बनते हैं। और आपको कोई और सवाल है? और सर इसके छोड़ के बोलिए। सर आप जो ट्रेनिंग में पढ़ाने वाले हैं ना, वो ग्लोबल हम्म, सर्टिफिकेशन जो रहता है ना, उसमें ही जी क्वेश्चन आते हैं ना वो जो आप पढ़ाते हैं वो। हाँ, हम बताएंगे आपको कौन से सिनेरियो में इंटरव्यूज में कौन सा सवाल पूछेंगे आपको, सर्टिफिकेशन के बावजूद में आपको कौन से सवाल आएंगे हम आपको बताएंगे, ओके। ठीक है। 1 मिनट, हाँ। हाँ, आपको हम वैसे ही सिखाएंगे, ठीक है। और इसके बाद का जो भी प्रोडक्ट होता है ना उसमें जो जो एक एक करके टॉपिक्स रहेंगे ना, हर टॉपिक्स में कैसे करना है स्टेप 1 से लेके एंड स्टेप तक, स्टेप बाय स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जो भी प्रोसेस होता है ना हर चीज वो हम डॉक्यूमेंट में करके आपको देंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं हम प्रोसेस पीडीएफ, ओके। इसके बावजूद हर चीज आपको रहेंगे सपोर्ट, हम 100% सपोर्ट करेंगे आपको। आपको जो भी है प्रॉब्लम नहीं रहेंगे,
तो इसके बावजूद आपको अगर कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। सर एक क्लास 2 मंथ का रहेगा ना? 2 मंथ्स ड्यूरेशन रहेंगे। So once you are done with your training, ठीक है, once you are done with your training, once after completion of your training, you will go for a certification. Okay, once after going for a certification, you will start your job searchings. Okay, once you hit the job searching, okay, you will get an opportunity. God bless, you will get an opportunity as soon as possible. ठीक है, once you get the job, you आपको मालूम है कितना पैकेजेस रहेंगे आपको ऐसे में जब आप जॉब के लिए हिट होते हैं? नहीं सर। नो, इतना भी आपको रहता है ना, मतलब है ना, यू वुड हैव हर्ड है ना बहुत। 6 to 3 to 4 लाख तक रहता है ना स्टार्टिंग में फ्रेशर को। अगर आप से डिपेंड्स होता है, अगर इंटरव्यू में हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड रहता है। आजकल फ्रेशर छोड़ के, मगर आप फ्रेशर को ही ऐसा कंपनी से दे आर प्रोवाइडिंग 6 लाख। ओके, 5 to 7 के बीच में दे आर इशूइंग द पैकेज। ओके, एक साल 2 साल एक्सपीरियंस फॉर देम 7 to 10। ओके, द पर्सन हु हैज, मतलब ये क्या बोलते हैं, 7 to 10 एल, इतना रहेगा। जो बंदा अगर आपको 5 साल से ज्यादा है उसको 10 लाख प्लस रहेगा। वो डिपेंड्स हम इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म। वो नहीं है अभी, बढ़ गया है अभी, मार्केट में प्राइस बढ़ गया, जैसे 5 6 7। आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप पूछ सकते हो। तो एचआर ऐसे रहेंगे आपको कम देने के लिए पूछता है, अगर आप ज्यादा पूछे तो वो लोग ज्यादा ही देंगे आपको। यू शुड बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर आस्किंग। आप कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। So that's it from my end. Okay, इससे ज्यादा रहेंगे हम। each when you get into the material management you will learn more topics, ठीक है। when you get into the training, हम ये जो पीरियड में होता है ना 8 से लेके 12 महीने तक, हम क्या क्या करते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, एक एक स्टेज में हम क्या क्या करते हैं, हम क्या क्या करना है, मटेरियल मैनेजमेंट की क्या क्या रहेंगे, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। ओके, ओके when you सर। start learning you will understand more, ठीक है। ओके। Tommy, you there? Yeah, any other questions, Pragati, Sneha? नो मैम। ओके, ठीक है। आप थोड़ा इस पे विचार करिए एंड अकॉर्डिंगली लेट आरफा नो अबाउट इट। एट द सेम टाइम वॉट एवर सजेशन वी गिव यू इन रिगार्ड्स टू कम्युनिकेशन, उस पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। पैरेलली यू गो अहेड। ओके, ठीक है, चलो। सो डू वी क्लोज द कॉल नाउ? प्रगति, स्नेहल, अभी क्लोज कॉल हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। All right, thank you so much for your coming. And Srinivas, yes, of course, thanks for your time, effort, and everything that you have invested now. So let's hope for the best. Thank you. Thank you so much. All right, all right. Thank you, everyone. Thank you, Pragati. Thank you, Sneha. Yeah, we are closing the call now. Thanks. Bye bye.